Dear students, good morning. I am Dr. Ramji Gupta, Professor, Animal Husbandry and Dairying, CSE Agricultural City, Kanpur. So today we are discussing about of the breeding. So what is the breeding? Breeding is a tool for breeders to get the higher genetic improvement of the animals. So that is a way to get a high genetic improvement of a spring with the help of the genetics, with the help of the breeding. And the mainly students you are seeing two type of the question. One is your just like what is the method of breeding and what is the system of the breeding. So method of breeding means how we met to male and female to get offspring, and these are the several methods, but the method of breeding I am discussing in the next video. So today we are discussing about of the system of the breeding. So students, what is the system of breeding? System of breeding means how you met a male and female to get a better genetic improvement of spring. या यूँ कह सकते हैं कि हम किसी नर और मादा को इस तरह से उनमें क्रम से मिलाते हैं कि हमें जो एक नवजात मिले उसमें जो हमारी जेनेटिक इम्प्रूवमेंट हो बहुत अच्छी हो. स्टूडेंट्स, द सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग इज मेनली टू टाइप, दैट इज द इनब्रीडिंग या अंतः प्रजनन, एंड सेकेंड थिंग इज आउटब्रीडिंग या बहि प्रजनन. So, what is the inbreeding? Inbreeding means the breeding between two animals is the closely related. मतलब जिनमें जो है संबंध बहुत प्रगाढ़ हो, बहुत क्लोज हो, उनके बीच जब हम कोई ब्रीडिंग कराते हैं, that's called the inbreeding. या in other word we can say that the breeding between 4 to 6 generation is called the inbreeding, right? And the outbreeding means the breeding between two unrelated animals. जिनमें कोई संबंध ना हो उनके बीच हम जब प्रजनन कराते हैं उसको हम बहि प्रजनन कहते हैं या आउटब्रीडिंग कहते हैं. और अदर वर्ड वी कैन से दैट द ब्रीडिंग बिटवीन टू एनिमल्स मोर देन 4 to 6 जनरेशन, मतलब जिनके बीच में 4 से 6 पीढ़ियों से अधिक का संबंध हो, जब उन ऐसे दो पशुओं के बीच में मादा और नर के बीच में हम प्रजनन कराते हैं, दैट्स कॉल्ड द आउटब्रीडिंग या बहि प्रजनन. देन फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, लाइक इनब्रीडिंग. सो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द इनब्रीडिंग. द इनब्रीडिंग इज मेनली टू टाइप, दैट इज द क्लोज ब्रीडिंग एंड लाइन ब्रीडिंग. क्लोज ब्रीडिंग मतलब कि जिनमें संबंध बहुत ही प्रगाढ़ हो. इसका अगर हम बात करते हैं, दिस मीन्स द मेटिंग ऑफ फुल सिस्टर टू फुल ब्रदर और सायर टू हिज डॉटर और डैम टू हर सन. दिस टाइप्स ऑफ मेटिंग शुड बी used only when both parents are outstanding individuals, and then only at increased risk of bringing undesirable recessive genes into homozygous form in the progeny. कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी हायर गुण के लिए, कैरेक्टर के लिए हम इनब्रीडिंग करते हैं, बट इनब्रीडिंग में और ख़ास तौर पे क्लोज ब्रीडिंग में, जब हम क्लोज ब्रीडिंग का मतलब होता है डैम टू सायर या फादर टू डॉटर. जिस द मेटिंग बिटवीन टू टाइप ऑफ द पेरेंट, दैट इज अ फादर एंड डॉटर, और यू कैन से ग्रैंडफादर टू डैम or grandfather to granddaughter, means that this is the closely relation and is called the close breeding. Then the
Mainly the advantage of the close breeding is that undesirable recessive genes may be discovered in the progeny if unfavorable gene is tested, or you can say that undesirable recessive genes may be discovered and eliminated by further testing in the line. किसी भी तरह से अगर कोई भी हमारा अनडिजायरेबल अवांछनीय गुण इस लाइन में दिखता है तो उसको हम अगली प्रोजनी के द्वारा हम दूर कर सकते हैं. द प्रोजनी आर मोर यूनिफॉर्म देन आउटब्रेड प्रोजनी. आर द मेन advantage of the close breeding is that they increase the homozygosity. You can say the homologous pairs or homologous genes are together much and more. Then another is the line breeding. Then line breeding means the breeding between two animals which are less related to the less related animals than the क्लोज ब्रीडिंग. जैसे कि क्लोज ब्रीडिंग में हम माँ और बेटा का, पिता और पुत्री का, या बाबा का पोती का, इस तरह का जब हम मीटिंग कराते हैं दैट्स कॉल्ड द क्लोज ब्रीडिंग. और जब हम जो है थोड़ा सा कम क्लोज ब्रीडिंग में जाते हैं जैसे कजिन सिस्टर एंड कजिन ब्रदर, जब हम इस तरह की मीटिंग कराते हैं दैट टाइम वी कॉल द लाइन ब्रीडिंग. एंड द लाइन ब्रीडिंग एडवांटेज इज इंक्रीज यूनिफॉर्मिटी एंड द डेंजर्स इन्वॉल्व इन क्लोज ब्रीडिंग कैन बी रिड्यूस्ड. मतलब ये है कि जो क्लोज ब्रीडिंग के नुकसान होते हैं वो इसमें थोड़ा सा दूर हो जाते हैं और इसकी जो होमोजाइगोसिटी होती है वो इसके थोड़ा सा और बढ़ जाती है. देन नेक्स्ट वन, outbreeding. At that time we are using the outbreeding for the improvement of the animals. Line breeding is only and only they increase the lethal factor. Students, as you know that we are talking about the which type of the seed is best. So you keep in the mind the hybrid seed are giving a better production as comparatively the our indigenous varieties or composite varieties. Yes, of course. So this type of the phenomena we use in the case of the animals is called the outbreeding. And the outbreeding can be divided into, that is the first is outcrossing, then crossbreeding, then grading up and hybridization. These are the four systems cover the outbreeding. So we are discuss one by one. The first is your outcrossing. Outcrossing means the crossing between two unrelated animals, or we can say that the crossing between two animals of same breed, द रिलेशन बिटवीन टू एनिमल्स द 4 to 6 जनर. या ये कह सकते हैं कि इस आउट क्रॉसिंग में हम उन दो ऐसे पशुओं का दो मेल और फीमेल का प्रयोग करते हैं जिनमें 4 से 6 पीढ़ी के बीच में कोई संबंध ना हो और एक ही प्रजाति के हों. ये यूँ कह सकते हैं कि यदि किसी हम साहीवाल ब्रीड को साहीवाल ब्रीड से ही क्रॉस कराते हैं, लेकिन अगर उसमें जो है 4 से 6 पीढ़ी से अधिक का संबंध नहीं है या अधिक का 4 से 6 पीढ़ी के अंदर कोई संबंध नहीं होता है, तो ऐसी क्रॉसिंग को हम बही प्रजनन, बही क्रॉसिंग या हम आउट क्रॉसिंग का नाम
देते हैं, बाई संकरण कहते हैं। सबसे बड़ा जो एडवांटेज है इस आउट क्रॉसिंग का, तो वो ये होता है हाईली इफेक्टिव फॉर कैरेक्टर्स दैट आर लार्जली अंडर द कंट्रोल ऑफ जीन्स विद एडिटिव इफेक्ट्स जस्ट लाइक मिल्क प्रोडक्शन, ग्रोथ रेट इन ब्रीफ कैटल। बहुत से ऐसे हमारे किसान भाई होते हैं जो चाहते हैं कि हमारा हर्ड में हेट्रोजाइगोसिटी, और एक चीज़ और मैं स्टूडेंट्स क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि व्हेन यू यूज़ द इनब्रीडिंग increase the homozygosity, whereas the outbreeding increase the heterozygosity. अगर हम इस पे बात करते हैं कि what is benefit of the heterozygosity and homozygosity, we use a lethal factor, and the lethal factor when come in the homozygous form, they are lethally much and more. But in the case of the when increase the heterozygosity in the chromosomes, that time the lethal factor will suppressed. This is the main advantage or main difference between the, you can say that, inbreeding and outbreeding. Then I told you, जैसे कोई किसान ये चाहता है कि हमारे पास साहिवाल का हड़ है और वो साहिवाल का बना रहे, अगर हम साहिवाल के ब्रीड में से ही, अपने हर्ड में से किसी सायर को चुनते हैं और उससे ब्रीडिंग कराते हैं, तो निश्चित रूप से इनब्रीडिंग बढ़ जाएगी। चूँकि हमको साहिवाल ही रखना है, ऐसे समय में हम ये क्या करते हैं कि किसी साहिवाल ब्रीड को, ऐसे सांड को हम लेते हैं जो साहिवाल का ही हो लेकिन आउटसाइड का हो, मतलब उनमें 4 से 6 जनरेशन के बीच में कोई जो है संबंध नहीं होता है। तो ऐसी दशा में जब हम ऐसे सांड को ब्रीडिंग के लिए अपने फार्म पर यूज़ करते हैं, दैट टाइम वी से दैट दिस इज द आउट क्रॉसिंग। देन नेक्स्ट वन इज द क्रॉस ब्रीडिंग। डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक यू आर मच फैमिलियर देन द वर्ड ऑफ द क्रॉस ब्रीडिंग। हिंदी में इसको हम कहते हैं संकरण, और जो इसका जो एनिमल या ऑफ स्प्रिंग होता है उसको हम कहते हैं संकर नस्ल का पशु। अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज हियर स्टूडेंट्स, कभी कभी आप लोगों से पूछा जाता है कि व्हाट इज द जूलॉजिकल नेम ऑफ द इंडियन ब्रीड्स। सिंपली यू टोल्ड अस दिस इज द बॉस इंडिकस, and what is the zoological name of the exotic breeds, that is the Bos taurus, and the mainly the variety breeds of the indigenous breeds, that's like Sahiwal, Sindhi, Gir Devani, or you can say that those are having the hump is the Zebu cattle or Indian breeds, and those are humpless is called the exotic breeds. But here is interesting that when we use the cross breeding, this concept is produced a crossbred animal. It is a mixture of the Indian breed and exotic breed. And just like I ask to students, what is the zoological name of the current Swiss? They are confused. But students, you remember the all crossbreds just like current Swiss, current Frise, Frieswald, Sujata, Sunandini, so many varieties, so many breeds are available in our country, and their native place in India. That's why their zoological name is Bos indicus, not Bos taurus. You remember it. So we are talking about the crossbreeding. The crossbreeding is mainly 3 types. That is the criss-crossing, then triple crossing, and next one is bike crossing. These are 3 types of the crossbreeding, and interesting is that during the criss-crossing, just like, firstly you know that क्रॉस ब्रीडिंग होती क्या है।
क्रॉस ब्रीडिंग में जब हम किसी नॉन डिस्क्रिप्ट काऊ को किसी इम्प्रूव नस्ल वाले या जेनेटिक प्योर ब्रीडिंग वाले सायर से उसको हम क्रॉस करा देते हैं, तो जो ऑफ स्प्रिंग हमें मिलता है उसको हम कहते हैं क्रॉस ब्रेड या संकर नस्ल का बच्चा। ये जो केसेस चले हमारे यहाँ, ज़्यादातर ये हुआ कि बहुत सी जो है हमारे नॉन डिस्क्रिप्ट गाय हैं जिनका ये नहीं पता है कि किस ब्रीड को बिलोंग करती हैं। तो ऐसे में हमारे वैज्ञानिकों ने सोचा उनका जो मिल्क प्रोडक्शन है दिस वेरी लेस, दैट्स हार्डली दे आर गिविंग ओनली 1 or 2 लीटर मिल्क पर डे। और आप सब जानते हैं कि 102 लीटर में किस किसान का भला होने वाला है। तो दैट टाइम आर विद द ब्रीडिंग दे इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन। और उसमें क्या हुआ कि किसी भी हमने इंडियन ब्रीड को लिया और इंडियन ब्रीड से हमने उसको क्रॉस करा दिया किसी एग्जोटिक ब्रीड वाले को। अब इंडियन काऊ हमारी हुई फीमेल और ये होता था मेल। अब इसका जो ऑफ स्प्रिंग आया हमारा वो होता था क्रॉस ब्रीड। अब इसका फ़ायदा क्या था? फ़ायदा यहाँ पर यह था कि जो हमारी इंडियन ब्रीड थी दे मच डिजीज रेसिस्टेंट एज कंपेरेटिवली अवर एग्जोटिक ब्रीड्स। Either students, if you are see some crossbred animals during the summer season, when the hot humid condition will persist for a long time, that time they are having some problem in his breathing. उनकी जो सांस लेने की गति है आप उसको देखिए, जैसे डॉग्स जो होते हैं ना वो बिल्कुल मुंह फाड़ के सांस लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह से उनकी प्रक्रिया होती है। कहने का मतलब ये है कि वो हमारे देश का जो गर्मी का सीज़न है उनको जो है बियर करने में बहुत ही कठिनाई पड़ती है। लेकिन जो हमारा क्रॉसब्रीड एनिमल है, चूँकि हमारे इंडियन ब्रीड में जो वो हीट टॉलरेंट होते हैं, तो इनका हीट टॉलरेंट, इनका मिल्क प्रोडक्शन, इनका डिजीज रेजिस्टेंसी, इनका मिल्क प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें जो है इसको ऑफ स्प्रिंग में मिल जाती हैं। और ऑफ स्प्रिंग में मिलने से क्या होता है कि जो हमारा गाय जो हमारी 1 से 2 लीटर दूध दे रही थी उसको जब हम किसी एग्जोटिक ब्रीड वाले सायर के से क्रॉस करा देते हैं तो इसका दूध का उत्पादन कम से कम 2 से 3 गुना, एक बार 2 to 3 टाइम में भी इंक्रीज्ड। जो भी है जिस तरह का जानवर होता है उसमें हमको 2 से 3 गुना दूध अधिक मिल जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स, द वन थिंग यू कीप इन द माइंड, आज की डेट में जो हमारे आसपास देख रहे हैं ना अन्ना पशु की बाढ़ आई है, उसमें भी ये सबसे बड़ा हमारे क्रॉसब्रीड एनिमल का हाथ है। चूँकि हुआ क्या कि जो हमारे वैज्ञानिकों ने रिकमेंड किया था उन्होंने इसको सिर्फ इसको हम F1 कहते हैं, F1 इस जनरेशन को हमने क्रॉसब्रीड कहा। लेकिन हुआ क्या कि हमने थोड़े से लालच में इसको और अधिक क्रॉस बनाया। क्रॉस बनाने का मतलब है कि व्हेन वी गेट द दिस ऑफ स्प्रिंग देन ये अगेन क्रॉस्ड विद द इम्प्रूव्ड नस्ल, that is the F2, and you know that this offspring having the 50-50 characters of the Indian breeds and exotic breeds, but due to the excessive use of the exploitation of the exotic breed character, that time the blood ratio will increase 75 to 25. In this one F2 the character is 75 of the exotic breed and 25 of the Indian breed. And again either they use this offspring for the exotic breed, that time the character will grows around 82.75 and this one is the 12.5. 75, 85, 87. That is 87.75. Here the problem will increase. After some time, some farmers are says that his animal or animal is not conceived, not come in the heat, can't if they are conceived after some time they prolapse of the uterus or many things or the abortion may be take place. This is due to the excess the character of the exotic breeds, and after some time the cross breeding program failure in our country. ये एक
इस तरह से हुआ, तो जो एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा कर गए इसकी वजह से। अब बात हम करते हैं कि क्रिस क्रॉसिंग होती क्या है। ये तो क्रॉस ब्रीडिंग हमने बता दी। अब क्रॉस ब्रीडिंग का जो तरीका है क्रिस क्रॉसिंग, क्रिस क्रॉसिंग में क्या होगा, मान लीजिए हमने कोई ए और बी, एक ए और एक बी, इन दोनों को हमने क्रॉस करा। इसको हम कह सकते हैं इंडियन ब्रीड, इसको हम एक्जोटिक ब्रीड। इन दोनों को जब हमने क्रॉस किया तो इससे हमें एक सी मिल गया, ऑफ स्प्रिंग, और इस सी में 50% इंडियन और 50% एक्जोटिक ब्रीड हो गए। अब इसको जब हम बढ़ाते चले गए, फिर बढ़ाएंगे कैसे हम, अब जो इसका ऑफ स्प्रिंग मिला, इसको हमने फर्स्ट टाइम, चूँकि हमने अगर इसको हमने सार इस्तेमाल किया है, इसको हमने डैम इस्तेमाल किया है, तो इसका हमने क्या किया कि इसका हमने सार ले लिया अगेन बी का, बी से क्रॉस किया सी को, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी मिल गया। अगर ये डी मिलता है तो डी में इसमें क्या हो जाएगा, तकरीबन जो है 75 और 25 का करेक्टर आ जाएगा। अब इस डी ऑफ स्प्रिंग को पुनः हम क्रॉस करेंगे ए से, और इसको हमें मिल जाएगा ई। इसमें क्या हो जाएगा कि 75 के बजाय इसमें हो जाएगा ये 37.5 और 62.5, मतलब कुल मिलाकर के इसमें हम इस तरह से क्रिस क्रॉसिंग करते, जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि चूंकि अंधाधुंध हम दौड़ में दौड़े, और दौड़ने से क्या हुआ कि एग्जोटिक ब्लड जो है वो हमारे इंडिजिनस ब्रीड में बढ़ता चला गया, और उसकी वजह से उनमें जो ये सारी दिक्कतें आई, जैसे कि समय पर गर्भित नहीं होना, समय पर गर्मी में ना आना, अगर वो गर्भित भी हो जाना है तो उनमें जो है वो एबॉर्शन हो जाना, ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिली। बट आइदर इफ दे यूज क्रिस क्रॉसिंग इन दिस वे, यू सी दैट one time we use the exotic sire, one time we use the indigenous sire, and their character almost same। इसकी वजह से क्या हुआ कि इसमें ना तो एक्जोटिक बढ़ने पाया, ना हमारा जो इंडियन बढ़ने पाया, बराबर मात्रा में चलता रहा, और उससे क्या हुआ कि उन जानवरों में जेनेटिक पोटेंशियलिटी उसी तरह बरकरार रही, उनके मिल्क प्रोडक्शन की एबिलिटी उसी तरह कंप्लीट रही। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली क्रिस क्रॉसिंग में। इसके अलावा जो दूसरा हम बात करते ट्रिपल क्रॉसिंग। ट्रिपल क्रॉसिंग क्या होती है, ट्रिपल क्रॉसिंग में हम क्या करते हैं कि 3 लेते हैं, ए बी सी। पहले हमने ए को बी से करा दिया, इससे जो हमें मिल गया इसको हमने सी से करा दिया, फिर इसके क्रॉस से हमें जो मिला इसको हम पुनः जो है ए ले गए, फिर इससे जो हमें ऑफ स्प्रिंग एफ मिला इसको हमने बी से कराया, फिर एफ से जो हमें जी मिला इसको हमने सी से कराया। तो 3 तरह की हम जो है इसमें ब्रीड का इस्तेमाल करते हैं, और तीनों ब्रीड का जो है हम पूरा जो है एक बार उसके ऑफ स्प्रिंग को पहले वाले से, फिर उसकी ऑफ स्प्रिंग को दूसरे वाले से, फिर उसकी ऑफ स्प्रिंग को तीसरे वाले से, जब इस तरह से हम उनको कंप्लीटली उनका जो है हम क्रॉसिंग कराते हैं, तो इस तरह से उनमें किसी भी एक वैरायटी या एक ब्रीड के गुण नहीं आते हैं, बल्कि सारे ब्रीड्स के गुण बरकरार रहते हैं। या ये कह सकते हैं कि जैसे हम लोग संकर नस्ल के भुट्टे की जगह पर कंपोजिट नस्ल की जो है हम भुट्टे की वैरायटी को यूज करते हैं, ठीक उसी तरह से हमारा ये ट्रिपल क्रॉसिंग होता है। नेक्स्ट वन, बैक क्रॉसिंग। अब बात हम करते हैं बैक क्रॉसिंग क्या होता है। बैक क्रॉसिंग में ऐसे आप कह सकते हैं कि इस बैक क्रॉसिंग को, जैसे हमने कोई 2 एनिमल लिए, और इनका जो ऑफ स्प्रिंग आया वो ये होगा। अब इनमें से जो हमारा जो अगर मान लीजिए डोमिनेंट है तो इसको छोड़ करके जो रिसेसिव होगा, रिसेसिव वाले पेरेंट से इसको हम क्रॉस कराते हैं। तो इसको जो क्रॉस कराएंगे तो उससे क्या होगा कि हमको जो है किसी भी एनिमल्स में
जब हम डिजी रेसिडेंसी को बढ़ावा देते हैं तो उस समय पर हम बैक क्रॉसिंग को ही अडॉप्ट करते हैं। सो नेक्स्ट वन, तो ये तो स्टूडेंट्स क्रॉस ब्रीडिंग हो गया। नेक्स्ट वन मैंने आपको बताया था ग्रेडिंग अप। इसको हम हिंदी में कहते हैं क्रमोन्नति। अब स्टूडेंट ग्रेडिंग अप क्या होता है? एक्चुअली में जो ग्रेडिंग अप का मतलब है, with the help of the grading up we convert an non-descript cow in an improved breed. How? It is very interesting and very अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, that is a very patience-full program. Either I told you in F1 you get the 50 and 50. In 50-50 means that is the mother, that is the father, or you can say other word, that is the indigenous breed, that is the exotic breed. And next one, that is the F2. Either you used, these are the offspring crossed with the exotic breed or improved breed. Either exotic breed, either improved breed. If you use this type of fashion, that time the F1, that is 75 and 25. क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि किसी भी मदर और फादर में आप देखते हैं कि 50% जो हम लोग हैं जैसे, या आप लोग हैं जैसे स्टूडेंट्स, तो आप में 50% कैरेक्टर आपकी मदर के हैं और 50% आपके पिताजी के हैं, और आपके पिताजी में भी उसी तरह से उनके माता पिता का है, या आपके अंदर जो आपकी माताजी का है उसमें भी जो 50% माताजी का है उसमें भी 50% आपके दोनों का पेरेंटल स्टॉक बढ़ता चला जाता है। यहाँ पर F2 में 75% हो जाएगा किसका? एक्जोटिक का, और 25 इंडिजिनस का। इसी तरह से F3 में फिर इसका हाफ हो जाएगा, मतलब 75 के बाद में जो 75 है, उस 75 के बाद में इसका फिर 75, इसका हो जाएगा 12.5, और इसका हो जाएगा 75, 10, 85, 2, 87.5। 100% ही रहेगा ये ध्यान रखिएगा, ये 100% ही रहेगा। इसी तरह से F4 अगर हम बात करते हैं तो इसका हो जाएगा कितना? 6.25, और इसमें फिर चल जाएगा 93.75। फिर इसका जो है F5। तो इसी तरह से करते करते लगभग F6 से F7 तक आपको जो है, जो नॉन डिस्क्रिप्ट काऊ था जिसकी आपको कोई ब्रीड पता नहीं थी, वो आपकी किसी न किसी इम्प्रूव ब्रीड में बदल जाएगी। चाहे आप उसको साहिवाल बदल लें, चाहे उसको सिंधी बदल लें, चाहे उसको जर्सी बदल लें, चाहे उसको हॉस्टन फ्रीजियन बदल लें, आप उसको ईजिली बदल सकते हैं। और इस प्रोग्राम को हम कहते हैं ग्रेडिंग अप। तो स्टूडेंट्स, अब लास्ट में हम बात करते हैं, और जो लास्ट की है दैट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर जो हम क्रॉप्स में हाइब्रिड का यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम इसको हाइब्रिड को बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक केस ये है कि जैसे आप देखते हैं कि किसी भी क्रॉप का अगर आप हाइब्रिड लेते हैं सीड, तो उसको अगली फसल में नहीं बो सकते हैं। अगली फसल में इसलिए नहीं बो सकते क्योंकि उसमें जो है सिग्रीगेशन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉ, जो मेंडल बाबा ने कहा था कि ना कि एक बार गुण रहेंगे साथ में फिर अलग अलग सिग्रीगेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे जो एनिमल के केस में है कि जो भी हम हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा एनिमल पैदा करते हैं, वो पहली चीज़ स्टेराइल होता है। फर्स्टली रिमेंबर इट, ये स्टेराइल होता है, लेकिन इनकी जो क्षमता होती वो बहुत अधिक होती है। जैसे इसका एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो है म्यूल या खच्चर। अब खच्चर क्या है? खच्चर में एक्चुअली क्या होता है, दिस इज द क्रॉस बिटवीन द घोड़ी और गधे का, राइट। जब घोड़ी और गधे का हम क्रॉस करते हैं तो उससे हमें प्राप्त होता है खच्चर। और ये जो खच्चर होता है, इसमें जो है
घोड़े की तरह से इसकी शक्ति ज़्यादा होती है, और इसके बाद में जो गधे की तरह का जो डंकी हमारा होता है, उसकी अपेक्षा जो है इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इसकी जो बोझा ढोने की शक्ति बढ़ जाती है। लेकिन यू रिमेंबर इट, दिस वन द स्टेराइड। इसी तरह से जो हमारा डोमेस्टिक हॉर्स है, उसको अगर हम जो है डोमेस्टिक हॉर्स को जो नर है उससे अगर हम किसी मादा जो है डंकी को कर देते हैं तो उससे हमें हिन्नी प्राप्त होता है। इसके अलावा जो जेब्रा है, जेब्रा को अगर हॉर्स से करते हैं, यानी जेब्रा अगर मेल और फीमेल हॉर्स इस्तेमाल करते हैं तो जिब्राड मिलता है। इसी तरह से अफ्रीकन जेब्रा से और डोंकी से कराते हैं तो जिब्रॉन्की मिलता है। इसी तरह से बहुत सी जो है ब्रीड्स डेवलप हुई हैं, जिसमें कैटेलो है, बाइजन है, इस तरह की सेवरल होती हैं। बट इनमें जो है शक्ति तो होती है, नो डाउट। जैसे आप देखते हैं कि खच्चर का इस्तेमाल हम लोग ज़्यादातर पहाड़ों पर तोप वगैरह सेना इस्तेमाल करती है, इनमें शक्ति तो होती है, लेकिन ये स्टाइल होते हैं, इनमें जो है अगले जनरेशन की कोई क्षमता नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑफ द सिस्टम ऑफ द ब्रीडिंग। आई होप यू एंजॉय इट एंड आपको अच्छा लगेगा। जैसा हो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।